Namaskar. Myself Dr. Lavkush Dwivedi, Faculty of Immunology at Department of Biomedical Sciences, Bundelkhand University, Jhansi. Today we will discuss about the vaccine. It is a very important topic nowadays, especially when we are suffering with COVID-19. In entire world, the people are suffering from the COVID-19, and vaccine is the only hope which is saving millions of life. So, today we will discuss that how a vaccine is developed and what are the principle of vaccines, what are the different advantages and disadvantages of the vaccines, very basic things we will discuss today. So, let us move to the presentation please. What are the vaccines? Before understanding this fact, let me understand the immunity, because we know the vaccine is given to elicit memory response against the pathogen which we are targeting. So, exactly what is immunity? Let us understand first. Our body is having several kind of systems, and among them there is a one system that is called immune system, which is providing a defense to our body against the foreign antigen. But the immune system is well trained that it should recognize between the self and non-self antigens, because we know that our body is made up of several type of cells, and among them there are millions of proteins which should be treated as a self, and at the same time there are several proteins which are infiltrating in our body from the outside, they should be treated non-self. So, very first the immune system is given training to distinguish between the self and non-self, and once it is identified that this particular antigen is not a self, it is a non-self, then only the immune system should give the response. So, very first it is the training which is given to the immune system to distinguish between the self and non-self. Then the duty of immune system is to protect us from the infectious diseases, from the microbial agents which are causing the infections. And how we are identifying that our immune system is activated or immune response is generated, that is because of the presence of the antibody. So, if suppose we want to detect whether we have got the infection of some particular microbial agent or not, whether our immune system is involved against that microbial agent or not, that can be detected by the presence of antibody. And we know that the immune system is highly specific from antigen to antigen. It can provide the immune response from one antigen to another antigen. It is a kind of personalized type of immune response generated by the immune system. So, what are the two different type of immunity if you understand? That is, one is active immunity, another is passive immunity. The active immunity is that type of immunity where our immune system is getting involved, that is called active immunity. And when we are taking any preformed solution of the problems or antigens, that is called passive immunity, means where our immune system is not getting involved. So, if we want to do the immunopotentiation, so we have to involve our immune system, we have to evoke our immune system so that it can generate the response, and when we are doing it, this is called active immunity. But in several cases where we are not involving our immune system, we are taking the preformed solution from outside, that is called passive immunity. So, what basically this immune system, how it is responding to the particular antigen, if you see, there are two types of response our immune system giving for the antigen, that is primary immune response and secondary immune response. So, any antigen which comes to our body very first time, our immune system is recognizing that whether it is self or non-self. If it is non-self, then our immune system will give the response against that, but it will take some time at the primary response, because at that time it is recognizing to that antigen, and then accordingly it is giving the response. So, that primary type of immune response, how it is different from the secondary immune response. In case of primary immune response, it takes some time for identifying that antigen, whether it is self or non-self, and then to generate the response according to that antigen value, the amount as well as its quality. So, for some period in primary immune response, no immune response is observed. So, that period is called the lag phase. You can see here
that in after infection about 6 to 7 days there was no response observed in the body, because body was trying to identify that particular antigen during this period, and then when it was identified, then the antibody titer was developed. So, you can see that there is a lag phase, as well as there is one more thing, and what is that? That this phase is basically slowly developing. It is not developing very fast, it is slowly developing, and after some time it is getting down, coming at the baseline. ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान हो रहा है, और इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे बॉडी को वो एंटीजन पहली बार एक्सपोज हुआ है, और उस पहली बार एक्सपोजर के दौरान हम उसको पहचानने में कि वो हमारी बॉडी का एंटीजन है या बाहर से आया हुआ एंटीजन है, इसमें हम थोड़ा समय लगाते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम हमारी बॉडी में कौन सा पर्टिकुलर लिम्फोसाइट होगा जो उसके अगेंस्ट एक्शन शो करेगा या उसके लिए स्पेसिफिक है, इसको डिसाइड करने में हमें समय लगता है, और उस दौरान हमारी बॉडी में कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता, एंड दिस इज कॉल्ड लैग फेज, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब भी कभी ये डेवलप हो रहा है, ये स्लोली डेवलप हो रहा है, और थोड़े समय के बाद ये बेस लाइन पर आकर के रुक जाता है। लेकिन अगर वही एंटीजन कुछ दिनों बाद दोबारा हमारी बॉडी में आता है, तो उसको हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है, उसको हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, एंड दैट रिस्पॉन्स इज क्वाइट डिफरेंट देन दैट द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। हाउ इट इज़ डिफरेंट, आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान जो लैग फेज है, वो लैग फेज यहाँ पर नहीं होता, और जो एंटीबॉडी टाइटर डेवलप करने की स्पीड है वो भी काफ़ी शार्प है, काफ़ी तेज़ी से एंटीबॉडी डेवलप होते हैं, और बहुत जल्दी हम हाई पीक अवेलेबल जो अटीन कर लेते हैं। प्लस जब भी ये डाउनफॉल होता है, ये डाउनफॉल बिल्कुल बेस लाइन तक नहीं आता, जैसे कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आया था, यहाँ पर बेस लाइन तक नहीं आता, बल्कि एक एंटीबॉडी टाइटर, एक सर्टेन लेवल एंटीबॉडी का सदैव मेंटेन रहता है। सो दिस इज व्हाट द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज। व्हाट वैक्सीन इज ट्राइंग टू डेवलप, लेट मी टेल यू that vaccine is the way through which we are trying to introduce a particular antigen to our body, so that our body get rehearsed what kind of immune response has to be given for that antigen. And whenever there will be natural infection, the body will not give the primary immune response, rather it will give the secondary immune response that we are trying to do through the vaccination. Because we know हम जब पहली बार किसी एंटीजन से एक्सपोज होते हैं, तो हम हो सकता है हमारे हारने के रिस्क हैं, बिकॉज एंटीजन किस क्वांटिटी में आता है, कितनी क्वांटिटी में है, किस तरह के वैल्यू है उसकी, इसके आधार पर हम हो सकता है कि उससे जीत ना पाएँ। लेकिन अगर उस एंटीजन से हम पहली बार एक्सपोज हो चुके हैं और हमारी बॉडी में ये तय हो चुका है, उसके अगेंस्ट मेमोरी बन चुकी है कि किस तरह का रिस्पॉन्स इसके लिए दिया जाना है, बॉडी उसके अगेंस्ट एक क्विक इम्यून रिस्पॉन्स देती है, जिसको कि हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। और ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हमारे जीतने की प्रबल संभावना इसमें होती है, क्योंकि हम वो जो लैग फेज है वो हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में नहीं होता। सो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जो भी महामारी फैलाने वाले माइक्रोब्स हैं, उनके अगेंस्ट हमारा बॉडी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ना दे बल्कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दे, इसको इंश्योर करने के लिए हम इंड्यूस्ड इन्फेक्शन कराते हैं, और इंड्यूस्ड इन्फेक्शन करा करके हम वैक्सीन के थ्रू एक सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कराने की कोशिश करते हैं। सो हाउ दिस vaccination is done, basically there are two types of vaccines. If you see, one is attenuated vaccine, another is inactivated vaccine. The attenuated vaccine is that kind of vaccine where we are giving vaccine in which we have included the antigen which is weakened, not dead. हम उस एंटीजन को जिसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप करना चाहते हैं, उस एंटीजन को हम कमज़ोर करके हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। कमज़ोर इस सेंस में करते हैं कि वो एंटीजन हमारी बॉडी में आने के बाद कोई बीमारी कॉज ना कर पाए, बल्कि वो सिर्फ हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर पाए। बिकॉज हर एक एंटीजन के पास दो तरह की मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक उसकी पैथोजेनिसिटी जिससे कि वो बीमारी कॉज कर सकती है, और दूसरी उसकी इम्यूनोजेनिसिटी जिससे कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। तो चूँकि हमारा जो पर्पज़ है वैक्सीन देने का वो यही है कि उस वैक्सीन में दिया गया जो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट है, जो वायरस है जिसके अगेंस्ट हम अपनी बॉडी को इम्पोर्टेंट करना चाहते हैं, उस वायरस के अगेंस्ट
हमने उसकी पैथोजेनिसिटी को कमज़ोर कर दिया ताकि वो वायरस कोई बीमारी कॉज ना कर पाए और सिर्फ जो है वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, वो इम्यूनोजेनिक हो। तो ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होता है और ये वैक्सीन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये हमारे दोनों तरह के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में ह्यूमरल इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट कर सकता है, प्लस सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन जो इनएक्टिवेटेड काइंड ऑफ वैक्सीन्स होते हैं, इसमें हम जो पैथोजेनिक आइटम है या पैथोजेनिक एजेंट है उसको हम केमिकली या हीट किल्ड कर देते हैं, उसके बाद बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि इसकी इम्यूनोजेनिसिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती, पैथोजेनिसिटी तो बिल्कुल भी नहीं रहती। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स में किसी प्रकार की कोई भी बीमारी कॉज करने की संभावना नहीं है। लेकिन जबकि लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स के साथ ये है कि चूँकि वो हमारी बॉडी में सस्टेन करते हैं और अगर किसी ऐसे व्यक्ति की बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसका कि इम्यून सिस्टम पहले से कमज़ोर है, तो हो सकता है कि वो लाइव है, चूँकि वो एंटीजन वो अपने आप को वहाँ पर सस्टेन कराए और सस्टेन कराने के बाद में कुछ दिनों बाद वो एक वेरिएंट स्ट्रेन में अपने आप को डेवलप कर ले। इसीलिए लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन को किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाना नहीं प्रेफर किया जाता जिसका कि इम्यून सिस्टम पहले से कमज़ोर हो। ऐसे वैक्सीन्स उन्हीं को दिए जाने चाहिए जो कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं हैं। सो देयर आर फ्यू ब्यूटीज़ ऑफ द लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स, व्हाई दे आर डेवलप्ड, बिकॉज हम जानते हैं कि हमको जो इन्फेक्शन होने वाला है वो नेचुरल एजेंट के साथ ही होने वाला है जो कि लाइव है, वो डेड नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि हम उस इन्फेक्शन को एग्जैक्टली मिमिक कर लें ताकि नेचुरल इन्फेक्शन के दौरान हम सही इम्यून रिस्पॉन्स दें और हमारा जो नेचुरल एंटीजन है उसको हम प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएँ, मार पाएँ, तो इसके लिए हमको जो अपनी बॉडी को रिहर्स्ड कराना चाहिए वो भी लाइव एजेंट से ही रिहर्स्ड कराना चाहिए, क्योंकि जो हमको इन्फेक्ट करेगा वो लाइव करेगा, डेड नहीं करेगा। इसलिए अगर हम लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हम नेचुरल इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक मिमिक कर ले जाते हैं। इसीलिए जब कभी भी नेचुरल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है तो उसके अगेंस्ट हम प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स दे पाते हैं, क्योंकि हम पहले से उसके अगेंस्ट रिहर्स्ट कर चुके हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हम कई तरह के लोग यहाँ पर हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको किसी इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से इम्यूनोसप्रेसिव डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं, या किसी को HIV का इन्फेक्शन हो चुका है, वो इम्यूनो डिफिशिएंट है। ऐसे व्यक्ति जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, चूँकि वो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स को में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, संभावना है कि उनमें वो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कोई म्यूटेशन कॉज कर दे और वेरिएंट स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे लोगों के लिए इनएक्टिवेटेड काइंड ऑफ वैक्सीन्स डेवलप की गई, जिसमें कि जो वायरस है या जो भी एजेंट है जिसको कि हमने लिया है उसको हम हीट किल्ड या केमिकल किल्ड कर देते हैं, जिससे कि बीमारी कॉज करने की बिल्कुल भी संभावना नहीं रहती। सो दिस इज़ हाउ these two type of vaccines are developed. And now as I told you that inactivated vaccines cannot replicate, but live attenuated vaccines can replicate. They can replicate. Inactivated vaccines cannot be generally effective as live vaccines. उनकी अपनी एक लिमिटेशंस हैं, लेकिन उनकी ब्यूटी ये है कि वो आपको किसी भी दशा में बीमारी कॉज नहीं कर सकते। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स को हमको कई सारे डोजेज लेनी पड़ती हैं, कई बार हमको इसकी बूस्टर डोजेज लेनी पड़ती हैं। लेकिन जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स होते हैं, कई बार इनको बूस्टर डोज लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लाइव हैं और सेल्फ रिन्यूअल अपना ये करते रहते हैं, इसीलिए इनको बार बार बूस्टर डोज लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स और लाइव वैक्सीन्स के बारे में डिफरेंस कर सकते हैं। Now, if you see that what are the principle of vaccination, how the vaccination is generated. So, अगर हम general rule देखें तो inactivated vaccines are generally not affected by circulating antibody to the antigen, and live attenuated vaccines may be affected by the circulating antibody to the antigen. जो inactivated vaccines हैं उनमें कभी भी जो है वो हमारी जो circulating antibodies हैं उन antibodies के साथ किसी प्रकार का कोई interference इनएक्टिवेटेड एंटीजेंस के साथ नहीं होता। लेकिन जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन एंटीजेंस हैं उनमें हमारे सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी का इंटरफेरेंस होता है, जिससे कई बार हमारे जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स होते हैं उनमें परिवर्तन भी आ जाता है। सो ये जो वैक्सीन्स हैं ये वैक्सीन कभी भी हमको जो सर्टेन इंटरवल बताया गया है उस इंटरवल से पहले नहीं लिया जाना चाहिए।
we have to take care that we should not take it before the given interval, as well as हमको कभी भी एडिटिव डोजेस भी इसकी नहीं लेनी चाहिए। कभी अगर हम ये कहें कि हमारा एक वैक्सीन ऑलरेडी छूट गया है और हमको दूसरा जो छूटा हुआ वैक्सीन है वो दूसरे डोज के साथ हम एक साथ ले लें, अगर वो रिकमेंडेड नहीं है तो वो बिल्कुल भी नहीं लिया जाना चाहिए, बिकॉज इन सब की अपने एक टाइम इंटरवल हैं जो वेरी वेल कैलकुलेटेड हैं, जिसके आधार पर ही इम्यून रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से जनरेट हो सकता है। अगर इन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया तो ये वैक्सीन फ़ायदा करने के बजाय नुकसान भी कर सकते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन? अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो मैंने कहा कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हमारे दोनों फेजेस ऑफ इम्यून सिस्टम को या हर फेज ऑफ इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है, ह्यूमरल को भी और सेल इम्यूनिटी को भी, और ये हर तरह के एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है, और ज़्यादा ड्यूरेबल इम्यूनिटी इसके थ्रू हमको मिलती है, और बहुत ज़्यादा क्रॉस रिएक्टिविटी भी आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है ये, और बहुत जल्दी जो है वो इस तरह के वैक्सीन लेने के बाद बहुत जल्दी हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और डिसएडवांटेज के कुछ हैं, और डिसएडवांटेज ये हैं कि चूँकि ये लाइव है इसलिए इसमें म्यूटेशन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और अगर म्यूटेशन हो जाता है तो कई बार ये हमारे लिए विरुलेंट स्ट्रेन भी डेवलप कर सकता है जो कि रिकमेंडेड नहीं है। एक और बड़ी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है कि चूँकि ये लाइव है इसीलिए कई बार ये उन वैक्सीनेटेड लोगों से उन लोगों में भी फैल जाता है जो लोग वैक्सीन लेने के लिए एडवाइजेबल नहीं है, उनको नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि वो उन लोगों के साथ रह रहे थे जिनको कि वैक्सीन दिया गया था, तो ऑटोमेटिकली ये वैक्सीन उनमें ट्रांसमिट हो सकता है। सो दैट मे बी वन रिस्क बिकॉज दे वर नॉट सपोज टू टेक दैट वैक्सीन, लेकिन फिर भी उनको ट्रांसफ़र हो गया, तो दैट इज़ वन रिस्क। इसकी एक पॉजिटिव फेस भी है। पॉजिटिव फेस ये है कि अगर बाय द वे कहीं एक पॉपुलेशन में हम सिर्फ किन्हीं कुछ लोगों को ही ये वैक्सीन दे पाते हैं और बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, तो वो जो लोग छूटे हुए हैं वो उन लोगों से उस वैक्सीन वो उनमें स्प्रेड हो सकता है, और इस तरह से एक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करने में ये हमको मदद कर सकता है। तो इसके कुछ पॉजिटिव फेस भी हैं और नेगेटिव भी हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स की एडवांटेजेस, जैसे मैंने कहा, एक सफिशिएंट ह्यूमरल इम्यूनिटी जब डेवलप करता है, बूस्टर डोजेज हमको बार बार इसकी देना पड़ता है। अगर आप बूस्टर डोज नहीं देंगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद इसके द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है वो एक्सपायर हो जाएगी और हमको बूस्टर डोज की बार बार रिक्वायरमेंट होगी। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई म्यूटेशन नहीं है, किसी प्रकार का रिवर्जन नहीं है। जिस तरह से हमने अपने एजेंट को डेवलप किया है उसी तरह के एजेंट हमको देखने को मिलेगा और उसमें कोई भी प्रकार का म्यूटेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की बीमारी कॉज होने के कोई रिस्क इसमें नहीं है। और सबसे अच्छी बात कि हम इस तरह के वैक्सीन को उन लोगों में भी यूज़ कर सकते हैं जिनमें की इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है, उनको भी वैक्सीनेट किया जा सकता है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स के केस में हम ऐसे लोगों को वो वैक्सीन नहीं दे सकते जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, लेकिन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स ऐसे लोगों को भी दी जा सकती है जिनके अंदर पूरी तरह से इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। चूँकि ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, इस वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि कई सारे वैक्सीन्स प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप नहीं करते। सबसे बड़ी बात बूस्टर डोजेस की बार बार चूँकि आवश्यकता होती है इसमें, इसलिए कई बार इसका जो इंजेक्शन है पेनफुल होता है, और इस वजह से ये भी एक प्रकार की जो है वो डिसएडवांटेज है कि हमको इन वैक्सीन की बार बार डोजेज लेनी पड़ती हैं, कॉस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात कि जिन एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स में इसको टेस्ट किया जाता है, कई बार उन मॉडल्स की कमी होती है जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से इनकी टेस्टिंग नहीं हो पाती। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। There are some adverse reactions which may be raised by this vaccine, and what are those adverse reactions? There are few types of like local, systemic, allergic. So locally if you see, जहाँ कहीं भी इंजेक्शन लगाया जाता है वैक्सीन का, वो एरिया पेन कर सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, उसमें रेडनेस आ सकती है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, और इट इज़ वेरी कॉमन विद द काइंड ऑफ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। ये कॉमनली ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और यूजुअली माइल्ड होते हैं और कुछ दिनों बाद जो है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टमिक प्रॉब्लम भी कई बार हमको देखने को मिलती है इन वैक्सीन्स को लेने के बाद, एंड दैट प्रॉब्लम में बी लाइक देयर मे बी फीवर, देयर मे बी मलेज, हेडेक, which are नॉन स्पेसिफिक, नॉट वेरी स्पेसिफिक। और हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं वो वैक्सीन से रिलेटेड ना हो, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व होती हैं।
कुछ वैक्सीन्स एलर्जिक भी होती हैं, क्योंकि वो एलर्जी उस वैक्सीन या वैक्सीन के कंपोनेंट के लिए हो सकती है। बट ये जो चीज़ है वो रेयर है, बहुत ऑफन नहीं है, और अगर हम प्रॉपर तरीके से स्क्रीन करें तो हम इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकते हैं। दे आर सम परमानेंट कॉन्ट्राडिक्शन आल्सो, एंड व्हाट आर दोस कॉन्ट्राडिकेशंस दैट सेवरल एलर्जिक रिएक्शंस टू द वैक्सीन कंपोनेंट आर फॉलोइंग अ प्रायर डोज। कई सारे इंसेफेलोपैथीज भी कई सारी चीज़ें में देखी जाती हैं, लेकिन लेट मी टेल यू दैट इट इज़ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, बिकॉज वैक्सीन के डेवलपमेंट और पब्लिक में आने से पहले बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनमें ये सारे कुछ चेक किए जाते हैं कि ये चीज़ तो नहीं होगी। नाउ कहाँ पर वैक्सीन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, किन किन लोगों को वैक्सीन नहीं दी जाना चाहिए, या कहाँ पर किन लोगों को किस तरह की वैक्सीन दिया जाना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लाइव वैक्सीन्स शुड नॉट बी एडमिनिस्ट्रेड टू द वीमेन नोन टू बी प्रेग्नेंट, बिकॉज आई नो, हमने जैसे बताया कि वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, चूँकि प्रेग्नेंट लेडीज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती हैं, उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम ड्रिफ्ट करता है, ऐसे लोगों को लाइव वैक्सीन्स नहीं दिया जाना चाहिए। In general, inactivated vaccines may be administered to the pregnant women for whom they are indicated. उनको अगर हम वैक्सीन देना चाह रहे हैं तो हम उनको इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स दें, हम लाइव वैक्सीन्स उनको ना दें। ऐसे लोगों भी लाइव वैक्सीन्स मत दें जो इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको कोई ऐसी बीमारी है जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनको भी हम लाइव वैक्सीन्स ना दें। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स सेफ़ हैं, उन इम्यूनो सप्रेस्ड पर्सनस को हम उनको दे सकते हैं, उनको हम लाइव ना दे करके बल्कि इनएक्टिवेटेड दें। और वैक्सीन शुड बी डिलेड अंटिल द इलनेस हैज़ इम्प्रूव्ड। अगर कहीं पर किसी भी वैक्सीन की वजह से कोई इलनेस हो गई है या महसूस हो रहा है कि पहले से कोई व्यक्ति किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जब तक कि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता है उसको वैक्सीन ना दिया जाए, क्योंकि अगर वो पहले से किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, बीमार है, और अगर उस समय भी उसको वैक्सीन दे दी जाती है तो वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो कोशिश करें कि जब वो ठीक हो जाए तभी उसको वैक्सीन दिया जाए, बीमार अवस्था में उसको वैक्सीन ना दिया जाए। क्या मेजर प्रॉब्लम है अगर हम वैक्सीन डेवलप करने के लिए जाते हैं तो दे आर सम मेजर हर्डल्स जिससे कि हम प्रॉपर वैक्सीन डेवलप नहीं कर पाते। पहला तो ये कि डिफरेंट वायरसेस मे कॉज सिमिलर डिजीज़। बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो वायरसेस तो अलग अलग हैं लेकिन वे बीमारी एक जैसी ही कॉज करते हैं, और चूंकि जो हम वैक्सीन बनाए हैं, जो वैक्सीन हमने लिया है वो हम किसी पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट ले सकते हैं, और चूंकि बीमारी उस वायरस के साथ साथ कुछ और वायरसेस भी उसी तरीके की बीमारी को कॉज करते हैं, इसलिए जब कभी भी कोई दूसरा वायरल एजेंट उस बीमारी को कॉज करेगा तो जिसके अगेंस्ट आपने वैक्सीन ली है वो काम नहीं करेगा। ऐसे में ये होता है कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी व्यक्ति बीमार हो गया। ये कैसे हो गया? वो इसी वजह से हो गया क्योंकि जिस वायरस के अगेंस्ट हमने वैक्सीन ली है वो वायरस नहीं बल्कि कोई दूसरा वायरस है जिसने कि बीमारी कॉज करी है, और कोइंसिडेंटली वो बीमारी वही है जो कि उस वायरस के द्वारा कॉज होती थी। तो चूँकि वायरस एजेंट बदल गया, इस वजह से हमारा जो लिया गया वैक्सीन है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। खास करके कॉमन कोल्ड के केस में ऐसा देखा गया है, क्योंकि कॉमन कोल्ड में बहुत सारे स्ट्रेन्स बदलते रहते हैं, एंटीजेनिक शिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग होती रहती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेन्स हैं वो बदल जाते हैं और हमारी पहले से जो जनरेटेड इम्यूनिटी है वो किसी यूज़ की नहीं रह जाती। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट एंड शिफ्ट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। जैसे मैं अभी बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे एंटीजेंस हैं जिनके अंदर जीनोमिक ड्रिफ्टिंग होती है, उनमें उनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन होने की वजह से उनका स्ट्रेन टाइम टू टाइम बदलता रहता है। तो इस बदलते हुए स्ट्रेन की वजह से उनमें जो इम्यूनिटी किसी पहले स्ट्रेन के लिए डेवलप हुई थी वो इम्यूनिटी बेकार हो जाती है। जैसे अभी कोविड के केस में देखा गया कि पहले स्ट्रेन के अगेंस्ट जो इन्फेक्टेड उससे हो भी चुके थे पहले स्ट्रेन से, उनमें उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जब नया स्ट्रेन आता है, सेकेंड वेव आई या थर्ड वेव आई, तो फिर से वो इन्फेक्टेड व्यक्ति फिर से वापस से इन्फेक्टेड हो गया और उनमें फिर से कोरोना के सिम्टम्स डेवलप हो गए। वो शायद इसलिए क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी थी वो कुछ पहले वाले स्ट्रेन के लिए थी और चेंज स्ट्रेन के लिए जो इम्यूनिटी थी वो नहीं थी, इसलिए उनकी बॉडी ने प्राइमरी रिस्पॉन्स उसके लिए दिया और इस तरह से वो उससे फिर से इन्फेक्टेड हो गए, बीमार हो गए। सो शिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग इज़ द मेजर इशू। लार्ज एनिमल रिजर्वायर होते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर जो है वो हमारे जो एंटीजेंस हैं वो रिजर्व्ड रहते हैं, और हो सकता है कि कई बार एक सर्टेन टाइम के बाद वो एंटीजेंस उनको वापस री इन्फेक्ट कर दें, जिसकी वजह से री इन्फेक्शन वजह से फिर से वो स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, और तब तक जो इम्यूनिटी है
वो व्यक्ति की कमज़ोर हो चुकी होती है। एक और बड़ी प्रॉब्लम जो इसमें देखी गई है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में जब इंसर्ट होते हैं या आते हैं तो वो अपने वायरल जीनोम को हमारे होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेट करा देते हैं। ऐसे इंटीग्रेटेड वायरसेस को हम प्रो वायरस के फॉर्म में जानते हैं और इन प्रो वायरस के अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई इम्यूनाइजेशन नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में जैसे HIV है, HIV लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल फॉलो करता है, वो अपने जीनोम को, RNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ करके कॉम्प्लीमेंटेड DNA में कन्वर्ट करता है और हमारे होस्ट DNA के साथ इंटीग्रेट करा देता है। बहुत सारा ऐसा वायरल जीनोम होगा जो CD4 सेल्स के अंदर इंटीग्रेटेड होगा, लेकिन ऐसे वायरल जीनोम को जो कि अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, जो कि प्रो वायरल फॉर्म में है, ऐसे वायरल जीनोम को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या इम्यूनोलॉजिकली उसको हमारा वैक्सीन उसको ट्रीट नहीं कर सकता, हैंडल नहीं कर सकता। वैक्सीन्स सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट रेस्पॉन्स दे सकते हैं जो सर्कुलेशन में आते हैं, जो सेल्स के अंदर छिपे हुए बैठे हैं उनके अगेंस्ट नहीं दे सकते। तो कई बार ये जो इंटीग्रेटेड प्रो वायरसेस होते हैं, ये जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, हमारी वैक्सीन के थ्रू डेवलप जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है, तब ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और एक्सप्रेस करने के बाद ये हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू मेजर हर्डल्स जिसके वजह से हम प्रॉपर किसी भी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव वैक्सीन कई बार हम डेवलप नहीं कर पाते क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।